بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈلی روڈ پہ، اور یہاں پہ آج ہم آئے ہیں ڈلی روڈ کے تاجروں کی اسپیشل دعوت پہ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ساحل بٹ اور شوکت تیمور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا احتجاج ہے ڈلی روڈ پہ ایک یہ جو احمد بیکری کے ساتھ جو ٹرانسفارمر ہے، بیمار ٹرانسفارمر کا اس کو نام دیا گیا ہے، جو یہاں کے لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ افسوسناک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسی محلے میں اور اسی ایریے کے لیے 200 kV کا ایک ٹرانسفارمر یہاں قریبی کسی جگہ پہ رکھا گیا ہے جو 1.5 سال سے وہاں پہ موجود ہے۔ اس بات کی لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کو استعمال میں کیوں نہیں لایا جا رہا، اور یہ جو بیمار ٹرانسفارمر ہے جو 2 روز سے مرمت ہو رہا ہے، جیسے ہی اس کو پول پہ لا کے اس میں کرنٹ دیتے ہیں وہ ٹرانسفارمر بند ہو جاتا ہے۔ یہ سارے لوگ اس شدید گرمی میں اور اس میں بڑی مصیبت اور مشکلات کا شکار ہے۔ ساحل بٹ، سب سے پہلے میں آپ کے کمنٹ جاننا چاہوں گا اس حوالے سے۔ جی شوکت صاحب، آپ نے ناظرین کو بتا دیا جو صورتحال ہے، اور بہت افسوسناک ایک پہلو میں دیکھ رہا ہوں کہ دکاندار حضرات، اسپیشل بچے، جو لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت روڈ میں تقریباً آدھی دکانیں ایسی ہیں، آدھے دکاندار ایسے ہیں جو متاثر ہیں، اور محکمے کی غفلت اور محکمے والوں کی نااہلی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ گزشتہ 4 دن سے لائٹ کوئی نہیں اور کاروبار کتنا متاثر ہے۔ اس گرمی میں تاجر آج مجبور ہیں کہ روڈ پہ آئے ہیں، اور ہم کیونکہ عوام کی بات کرتے ہیں اور ہم اپنے دکاندار بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور یہ محکمے کو دیکھنا چاہیے، ایک بہت افسوسناک پہلو ہے یہ۔ جی شوکت تیمور، آپ کیا کہیں گے؟ جی شوکت صاحب، بات یہ ہے کہ یہاں جو محکمہ برقیات ہے اس کا کام ہے صرف بل لینا۔ یہ جو مینٹیننس کا کام ہے یہ گزشتہ کئی برسوں سے باقی درجنوں ٹرانسفارمر خراب ہیں، اور خاص کر کے اس ٹرانسفارمر کی تو گزشتہ 1 مہینے میں کم از کم 10 بار یہ خراب ہوتا ہے، لیکن یہاں کوئی آدمی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب تک احتجاج نہیں کریں گے لوگ، جب تک روڈ بلاک نہیں کریں گے، اس وقت جا کے ان کو سمجھ آتی ہے کہ اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ جو آپ نے بتایا کہ یہاں ایک ٹرانسفارمر پڑا ہوا ہے وہ نہیں لگا رہے، کیوں نہیں لگا رہے؟ یہ لوگ کوسچن مارک ہے محکمے کے اوپر کہ محکمے یہاں کتنے مسائل ہیں، یہاں جو تاجر ہیں ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے، اور یہ فوری طور پہ اس پہ احتجاج کر کے لوگوں کو اپنا رول دینا چاہیے اور یہ ٹرانسفارمر بحال ہونا چاہیے۔ ہم ڈھلی روڈ کے تاجران، امامیہ کالونی کے باسی، یہ اوپر جو ہمارا محلہ ہے، یہ لوگ، ان کی طرف سے میں لیبرا کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے درد کو دیکھا۔ میں رات سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم انسان نہیں ہیں، یا ہم بھیڑیے ہیں یا بکریاں ہیں، ہمارے میں یہ چیز ہی نہیں ہے، انسانوں والی چیز ہی نہیں ہمیں۔ یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ جب ووٹ کی بات ہوتی ہے یہ کہتے ہیں یہاں ہم شہد کی ندیاں بہا دیں گے، یہاں ہم دودھ کی ندیاں بہا دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے عرصہ سے یہ ہمارا ٹرانسفارمر جو ہے یہ خراب ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اتنے بلات یہ لیتے ہیں، یہ ان کے پیٹ نہیں بھرے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ٹھہریں بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ اثر کرتی ہے لیکن وقت لگتا ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھیں کیا صورتحال ہو گئی ہے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے لوگوں کو انسان نہیں سمجھا ہے، ان کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس پر ہم کیوں باہر آئیں؟ ہم نے MLA بنائے ہیں، ہم نے ووٹ دیے ہیں، اور اتنا بڑا مینڈیٹ ہم نے دیا ہے اس مسلم لیگ کو، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی بری حالت ہے ہماری، اور لوگ رو رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، یہ بے روزگار لوگ ہو رہے ہیں، یہ کہاں جائیں گے رات کو، کہاں سے کھانا کھائیں؟ یہ ٹیلر ہیں، ویلڈنگ والے ہیں، باقی لوگوں کی یہ تمام کچھ آج کل جو ہے یہ بجلی پر یہ کام ہمارا ہو رہا ہے۔ تو میں حیران ہوں، ان کے کام پر جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ کیا یہ انسان ہے؟ ان کو یہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ مجھ عمر کی پیشی ہوگی اللہ کے دربار اگر کوئی کتا بھی دریائے دجلہ کے کنارے مرا۔ یہ کیا، یہ انسان ہے؟ یہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ پاکستان حاصل کیا گیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا لا الہ الا اللہ ہے؟ خواجہ صاحب، آپ کے محلے میں ایک ٹرانسفارمر پڑا ہے، اس کو کیوں نہیں نصب کیا جا رہا؟ یہ اس کے لیے ہم نے چندہ اکٹھا کیا ہوا ہے، صرف تھوڑی سی جگہ کی پرابلم ہے، اس کا کام کم از کم 80% ہو چکا ہے، تھوڑا سا کام رہتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں امامیہ کالونی کے لیے بھی بہت بڑی پریشانی ہے، بجلی کی بہت بڑی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، اس پر شاہ کے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں یہ۔ آپ اندازہ لگائیں 2000 کلو واٹ بجلی ہماری پیدا ہوتی ہے منگلا ڈیم کی، اور
हमें 350-400 किलोवाट बिजली की जरूरत है, वो भी हमें नहीं देते हैं। मैं कहता हूं अगर हम कहें कि उधर हमारे भाइयों को कितनी सहूलतें हैं, ये सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा। ये हमारे साथ ज्यादती न करें, ये पाकिस्तान के साथ नफरत पैदा कर रहे हैं हमारी। ये जो वापडा वाले सफेद हाथी बैठे हुए हैं, ये वापडा के सफेद हाथी जो बैठे हुए हैं, ये आजाद कश्मीर के लोगों की और पाकिस्तान के लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि क्यों हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ ये जुल्म है। एक तो हमारी बिजली आप ले जाते हैं, दूसरा हम पर ही लोड शेडिंग, और तीसरी ये बात ये हुकूमत को करनी चाहिए। और खास करके ये जो हमारे नुमाइंदे यहाँ बने हैं, 2 वजीर हैं हमारे और तुराबी साहब मेंबर हैं। देखें ख्वाजा साहब, एक बात है, यहाँ पे जो लोग मुतासर हो रहे हैं वो नून लीग वाले भी मौजूद हैं। बिल्कुल हमारा ये प्रोग्राम किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर का मसला है, इस इशू पे आप बात करें और इसको एड्रेस किया जाए। देखिए मेरी बात सुने, मुझे किसी लीग के साथ मुझे कोई सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक ताजिर हूं, मुझे कोई ताल्लुक, लेकिन मैं इनको ये बात कहता हूं कि खुदा के लिए इन लोगों पर रहम करो जिनसे कल तुमने वोट लिए हैं। सब पार्टियों ने लिए हैं, सबको इस वक्त हमारे साथ निकलना चाहिए। आप देखें कल ये प्रॉपर्टी टैक्स, भाई आप मंगला डैम की रियलिटी लें, आप पाकिस्तान से पैसे लें बिजली के, तुम क्यों गरीब लोगों को सताते हो, क्यों हमें तंग करते हो, किसका प्रॉपर्टी टैक्स हमसे लेते हो। ये 2005 को जल्जले से हम तबाह बर्बाद हो गए। आपने मुझे बताएं, एक तारिज की पूरी दुकान खत्म हो गई है, जो रहती थी वो लोगों ने लूट ली है। तो हमारे पास क्या है, मुझे कसम है खुदा पाक की, हम किराया पूरा नहीं कर सकते, तो आप ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स लो, ये मंगला डैम की रियलिटी लो। ये जंगलातों को जो तुम जलाते हो, जुल्म करते हो, ये हम सोने की चिड़िया हैं, तो तुम गरीबों को सताने की कोशिश करते हो। मत करो, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, तुम कल रुसवा हो जाओगे, दर हो जाओगे अगर तुमने इन गरीबों को, इन मिस्कीनों को सताया है। आज कल 10 बजे से हम बिजली के बगैर हैं और हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, लोगों का रोजगार छीना है आप लोगों ने। आप किस लिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें गैरत आनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं एक होटल में मुलाजिम हूँ, मैं खड़ा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ, तनख्वाह में मांग रहा हूँ। इसी तरह महकमे वालों की ड्यूटी है, जिस तरह हम दुकानदार, जिस तरह मुलाजिम अपनी ड्यूटी देता है, महकमे वालों की ड्यूटी है, हमारी तकलीफ गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हमारी तकलीफ दूर करने के लिए हमने उन्हें ऊंची ऊंची कुर्सियों पर भेजा हुआ है कि हमें कोई तकलीफ होगी, हमें चीनी नहीं मिलेगी, आटा नहीं मिलेगा, या खुदा न खास्ता रोड में कोई तकलीफ है, या कोई महकमा कोई हमें डाकू लूट रहे हैं, या हमारे ये नहीं है, बिजली नहीं है, या कोई और पानी हमें मार रहा है। ये उनकी ड्यूटी है कि हमारी हिफाजत करें, हमारी चौकीदारी करें। वो शेर के बच्चे ऐसे हैं कि जनाब उन्होंने तो कभी इस आवाम का पता भी नहीं किया कि क्या चीज़ें, कितने दिनों से ये ट्रांसफार्मर ख़राब है, लोग बिजली में बैठे हुए हैं, पक्के की हवाओं में बैठे हुए हैं, और हम बर्बाद हो रहे हैं और हमारी परवाही किसी को नहीं है। लिहाजा मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जिम्मेदारान लोगों जो बिल लेते हैं, जो अपनी तजारत करते हैं, वो भी एक तजारत है, वो मुलाजमतें भी करते हैं इस शोबे के सिर पर, लंबी लंबी पेंशनें भी लेते हैं, दुनिया की हर फैसिलिटी उनके लिए है। हम तो हमें धक्के मुक्के खा रहे हैं, बिल देंगे, पैसे देंगे। मैं उनसे अपील करता हूं कि फौरी तौर पर इस किस्म की तकलीफ वो दूर करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, वरना दुनिया तो उनकी गई, खुदा आखिरत भी उनकी लेके चला जाएगा। सबसे पहले मैं लिब्रा टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और शुक्रिया के साथ उन्होंने हमारे जो अजियत, जो तकलीफ इस वक्त हमें हो रही है उसका एहसास किया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आज से नहीं इसका एहतजाज कर रहे हैं, इस ट्रांसफार्मर का जो बीमार ट्रांसफार्मर है और ये अहमद बेकरी के साथ लगा हुआ है। हम 20 साल से मुतालबा कर रहे हैं, यही ट्रांसफार्मर, यही जो प्रॉब्लम हो रही है 20 साल पहले भी थी, आज भी उसी तरीके से है। आज जो प्रॉब्लम हो रही है, आप यकीन करेंगे कि आज कम से कम तीसरा दिन है हमारे लिए ये अजाब बना हुआ है और कोई भी इस वक्त ऐसे मस नहीं हो रही है महकमा बरकियात के पास। आप ये देखें कि लाखों के बिल्लात ये लोग लेते हैं और महकमा बरकियात के पास कोई मुतबादल निज़ाम मौजूद नहीं है। और हम जब बिल 1 तारीख से ऊपर हो जाए तो उस पर लिखा हुआ है कि आप एक्स्ट्रा पैसे सरचार्ज करेंगे। हमें ये बताया जाए कि आज कितने
घंटों से 3 दिन से हमारी बिजली बंद है। ये तो 3 दिन से लगातार खराब है, लेकिन ये पूरे महीने में ये बीमार ट्रांसफार्मर बीमार ही रहता है, इसको कोई डॉक्टर ठीक करने वाला मौजूद नहीं है। हम मीर अकबर साहब को हमने बताया, हमने कमर साहब को उस वक्त बताया था, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी है। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं इस हवाले से। हमारा इस ट्रांसफार्मर को या तब्दील किया जाए या इसके मुतबादल कोई निज़ाम बनाया जाए, क्योंकि पूरे दुकानदार इस वक्त मजबूर हैं। पूरे दुकानदार जो भी है, जो कारोबार करता है, टेलर है, मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल यूनिट के लोग हैं, लेकिन वो सब क्या करेंगे? मुझे बताया जाए, यही बताएं, अगर इन महकमा बरक़ियात वाले अगर हमारी जगह मौजूद हो, वो क्या करेंगे? वो तो एकदम एक दूसरे का सर फाड़ने पे आएंगे, लेकिन हम फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। हम तीसरा दिन है बर्दाश्त कर रहे हैं। हम 20 साल से इसी ट्रांसफार्मर को बर्दाश्त कर रहे हैं। यार हम कहाँ जाएं? हमारे लिए कोई जरिया नहीं है इस वक्त के, हम एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई सूरत हाल नहीं है। नहीं तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे, और ये बिजली वाले याद रखेंगे कि ढुल्ली रोड वाले लोग जो लोग हैं वो कितने सख्त हैं और कितना कुछ आगे काम कर सकते हैं। इनको शायद इतना यकीन भी ना होगा जितना हम करेंगे इनके साथ, लेकिन हम मजबूर होकर हम कहते हैं यार ये भी अपने लोग हैं, बरक़ियात वाले भी अपने लोग हैं। ये अगर हमारा एहसास नहीं करते, हम कब तक उनका एहसास करेंगे? लेकिन हमें एहसास अब नहीं करना, हमने इनके साथ वो करनी है जो शायद इस वक्त मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ नहीं हो रहा, जो हमारे बाग के लोगों के साथ हो रहा है। खुदारा इसलिए इससे हमारी जान छुड़ाई जाए, इस बीमार ट्रांसफार्मर से हमारी जान छुड़ाई जाए, हमारे इस निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। हमारे जो एक्शन साहब से मैं मुतालबा करता हूँ इस हवाले से कि अपने लाइन मैनू को और अपने मीटर रीडर को थोड़ा सा, आप पता नहीं आपको क्या, शायद ये आपके बारी हैं या शायद मीर अकबर साहब के रिश्तेदार हैं या फिर मुश्ताक महनाज के रिश्तेदार हैं, या फिर कोई वजह है जो आप इनको कंट्रोल नहीं कर रहे। आप इनके साथ मुकम्मल तौर पे आप इनको कंट्रोल करें, ताकि ये लोगों की तकलीफ को जो है बर्दाश्त करके ये दिन रात काम करें और हमारे लिए बेहतर सूरत हाल मौजूद हो सके और बिजली चोरी की रोकथाम को ख़त्म किया जा सके। हौसला इंतजार ही क्या अल्लाह की कसम, जिस दिन ने भी ये सारा ये हादसा होया ना, सारियां दुकानां बिल्कुल बंद हियां। ते इस वास्ते तुस मेहरबानी करके जेहड़ी तुसें गल आखी, ये बिल्कुल नंबर 1 गल दी, और मैं हुण भी तुसें आना इसके मेहरबानी करी। ते मीर अकबर साहब इंतजामिया ने सब तो बड़े हुए थे चीफ, तो उनने क्या स्पेशली ये गल करा कि भाई मेहरबानी करी तो इसने हाल खड़न। देखें शौकत साहब के आज़ाद कश्मीर, जैसे कि यहाँ लोगों ने कहा, ताजरों ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कम अज़ कम 3000 से ज़ायद मेगावाट बिजली पैदा होती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के बदकिस्मत लोग हैं कि जिनको बिजली मैसर नहीं है। और यहाँ जो सिस्टम आज से 30 साल पहले लगाया गया था महकमा बरक़ियात का, वही है। कोई इसमें मेंटेनेंस नहीं है, कोई यहाँ जो ट्रांसफार्मर हैं वो सारे के सारे नाकस हो चुके हैं, उनको तब्दील करना चाहिए था हुकूमत। बिल लेने के लिए देखे ना, क्या हम वो बिल भी दे रहे हैं यहाँ के लोग जो आइंदा 50 साल बाद मनसूबा शुरू उसकी प्रोजेक्ट शुरू होगा, उसका बिल हम दे रहे हैं। आज नीलम जलन प्रोजेक्ट है, कौन सा एक आदमी है कि जो वो बिजली इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसका बिल हम दे रहे हैं। जब यहाँ के लोग बिल दे रहे हैं तो उनको जो सहूलत है वो मैसर नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ के महकमा बरक़ियात के एहलकारों को होश के नाखन लेने चाहिए, और यहाँ के जो ये छोटे मोटे मसाइल हैं, एक ट्रांसफार्मर गुज़श्ता 10-15 सालों से ये ट्रांसफार्मर यहाँ के लोगों के लिए मिसाइल खड़ा किया हुआ है, तो इसको दुरुस्त नहीं कर सकते। वो किस लिए? जब तक लोग यहाँ ताकत का मुजाहरा करके इनको होश के नाखन नहीं दिलाएंगे, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि ये बात समझते नहीं है, ये दलील की बात नहीं समझते, ये अक्ल और शऊर की बात नहीं समझते। यहाँ एहतजाज की जुबान समझ आती है तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं। जब तक लोग एहतजाज नहीं करेंगे, पावरफुल एहतजाज नहीं करेंगे, उनके दफातर ब्लॉक नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते। आवाम का गुस्सा और जो चादर हमारे भाई हैं कितना नाला है। मैं शौकत साहब, क्योंकि देखें आप इदारा जो हमारा है, हम इस पे अपने नेटवर्क के थ्रू बहुत सी बातें कर चुके, लेकिन आप ये देखें कि ये लोग जब बिलात देते हैं, घरेलू सार्फिन है, कमर्शियल है, जो भी है, ये एक दिन भी ऊपर नहीं होने देते। और अगर आप गौर से महसूस करें, मेरे ताजिर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, कि यहाँ पे जो लाइंस वगैरह लगी हैं, जो पोल्स हैं, ये सब आज से 40 साल पुराना लगा हुआ सिस्टम है। और ये जो सारे लोग महकमे के अंदर मौजूद हैं वो अच्छी खासी पे ले रहे हैं। और अफसोस इस बात का है कि कोई भी एहलकार इनका ये बात नहीं सोचता कि अवाम कितनी परेशान है। और ये सारी सूरत हाल, आपका काम है भाई, आपको अवाम के पैसे से पे दी जाती है। आपका काम बनता है कि अगर आपके इदारे में कोई चीज नहीं है तो आप अपने सीनियर लोगों को बताएं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, हम नहीं लगा सकते।
یہ بات نہیں ہے کہ عوام، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 دن کے بعد لوگ سڑکوں پہ نکلنے پہ مجبور ہیں، اور یہ افسوس، بہت افسوس ہے۔ آج کی گورنمنٹ نے دعوے کیے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، عوام نے بھاری اکثری سے کامیاب کروایا۔ افسوس شوکت صاحب یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ایشو گزشتہ 15 سال سے ڈھلی روڈ پہ ہے اور کوئی محکمے کا آدمی ان بچاروں کی داد رسی کے لیے بھی نہیں آتا۔ یہ بہت افسوسناک ایک پہلو ہے۔ ناظرین، یہ تھی گفتگو جو یہاں آپ نے مظاہرین کی سنی، اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے، لوگوں کو بہت ساری سہولیات فراہم کرنے کی بات کی گئی، انصاف ان کی دہلیز تک پہنچانے کی بات کی گئی، لیکن ایک ٹرانسفارمر کو ٹھیک کر کے ایک نیا ٹرانسفارمر ان لوگوں تک نہیں پہنچایا گیا۔ کچھ ٹرانسفارمر کو سائیڈ پہ رکھ کے ویسے ہی اسپائل کیا جا رہا ہے، ضائع کیا جا رہا ہے، ان کو بھی استعمال میں نہیں لایا جا رہا، اور اپنے مفادات کو یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے۔ عوام کے بنیادی مسائل اور جو نہیں بول سکتے، یہاں پہ بہت سارے لوگ تھے جن کے دل میں تو بہت کچھ ہے، لیکن شاید وہ مائک پہ کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے۔ ان لوگوں کی آواز آخر کون سنے گا؟ اگر حکمران نہیں سنیں گے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ شوکت حسین، اپنے ساتھی ساحل بٹ، شوکت تیمور اور کیمرہ مین نوید اشفاق کے ساتھ ڈلی روڈ سے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہباں۔